بہم یرزقون، ہر طرح کا رزق ملے گا۔ رزق کھا رہے ہوں گے یا نہیں؟ کوئی رزق جسے اللہ رزق کہے کتنا اچھا دے رہا ہو، یا تو گڑبڑ ہے، ملاوٹ ہے، وہاں کھا ملاوٹ ہے، یا تو ہر شے کی ملاوٹ ہے، وہاں خالص ہوگا۔ صحیح بات، تو کہیں کبھی تو خالص کھائیں گے یار، کھائے گا۔ اللہ اکبر، یہ زمانہ آ گیا، اب کیا کریں؟ اچھا جناب، اب اس کے بعد جب تجرد میں آپ چلے جاتے ہیں تو کتنی تجرد بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ چلے گئے قیامت، مرنے کے بعد جنت میں، اب وہاں احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں، اس میں اس وقت کیا کہا جائے گا؟ اے مومن، جنت میں جنتیوں کو، دوسروں کو نہیں، جنتیوں کو خالق اپنا ایک مقام دے کے کہے گا، میں نے تمہیں تیرے تجرد میں وہ کمال بھر دیا ہے، تو جو کہتا جائے گا، کوئی کہتا جا، شاید وجود میں ہوتی جو بھی کہے گا، ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جس کو یہ نفس خواہش کرے، یہ آنکھیں اچھی لگے، یہ ہونی چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ہونا چاہیے۔ کیا کہے گا؟ کہے گا ہو جائے، ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ شے ایجاد ہو جائے گی یا نہیں؟ کہاں سے مومن چلا، کہاں کمال پہنچا؟ اور یہ پڑھا جس دن پیدا ہوا تھا یہ کمال نہیں تھا، اس پروسیس کو بلند کرتے کرتے کتنا کمال ہو گیا، جو وہ خود کن کہتا ہے یہ بھی کہنے کا، اس کے حکم سے مجاز ہو گیا۔ جنت میں جس شے کو کہتا ہے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اسی لیے اللہ کا ارادہ کرے شے وجود میں آ جاتی ہے۔ جب مومن ارادہ کرے شے وجود میں آ جاتی ہے تو پھر امیر المومنین کا یہ جب ایک مومن کا یہ کمال ہے تو پھر اللہ کی فاعلیت کیسی ہو، اس کا ارادہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس میں کتنا وزن ہوگا؟ جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب خالق بھی جو چاہے گا وہی ہوگا، امام جو بھی چاہے گا وہی ہوگا۔ دیکھیں وہی کمال جو خالق او جنت میں جا کے جنتیوں کو دیکھا، اس لیے ہادی مالک جنت بن کے آتا ہے۔ وہ والے کمالات یہاں لے کے آتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت والے کمالات جو وہاں جا کے ایک مومن نے دکھانے ہیں، وہ معصوم جو ہدایت کے لیے آتا ہے، وہ کمالات وہ یہاں لے کے آتا ہے۔ جب وہ یہاں لے کے آتا ہے پھر جس شے کو کہے کہ ہو جا، وہ شے ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، اور یقیناً ہو جائے گی، اور یقیناً ہو جائے گی۔ اور متوکل نے معاذ اللہ امام کے غلام کے آگے سے پلیٹ اٹھوا دی جادوگر سے۔ اب تو ہمارے بھی لکھنے لگ گئے کہ امام پہ جادو ہوا، معاذ اللہ۔ وہ خدا کے یار کچھ تو احتیاط کرے، بس انہیں ڈائریکٹ نام امام پہ ہی بات ہے، بس میں کچھ نہ ہمیں کچھ نہ چھوڑ دے اس کو۔ اب جناب امام کے غلام کے آگے سے پلیٹ اٹھی، دوسری مرتبہ اٹھی، تیسری مرتبہ اٹھی۔ اگر غلام کے آگے سے کہہ دیں کوئی تکلیف ہے، امام کے آگے ضرور کہنا ہے ذرا، جبکہ روایت صحیحہ ہی یہی ہے کہ غلام کے آگے سے، صحیح تشریف فرما، غلام کے آگے سے تیسری مرتبہ، جب ایک مرتبہ پلیٹ ہے ایک مرتبہ روٹی کا ہے کہ روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، روٹی اڑ گئی، بس تیسری مرتبہ روٹی کا اڑنا تھا، غلام کی نگاہ امام پر پڑی، امام
इमाम की निगाह कालीन पर शेर पे पड़ी। पहले जमाने में शेर होते थे। कसरे नमरूद में जाके मैंने देखा है, ओ तो कसरे नमरूद, वहाँ भी मैं गया हूँ, ऐसे शेर बने तो पहली दफा देखा, ओरिजिनल शेर है वो तुर्की के बॉर्डर पे, वहाँ जाके तो वहाँ शेर बना हुआ था, तस्वीर शेर पहले बनाते थे ना बड़े वो वाले। इमाम ने उससे क्या कहा उस शेर को, कुन असना, वो तो धागे थे, धागों की तस्वीर बनी थी। खुदा जाने धागों ने सुना कैसे, कौन मालूम हुआ इमाम जो भी सुनाना चाहे मादा सुन सकता हो। बाबा शेर बन गया या नहीं बन, कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी करे, और उसी को खा गया वो जो शोदाबाद, पता नहीं कैसे खा गया। मेरा ख्याल है खून अगर नीचे गुजरा है तो फिर खाने में कमी रही होगा, ऐसे खा लिया उसने, खून भी नीचे नहीं ताकि नजस जमीन में भी ना जाए। हाँ सही सही। अब हुआ ये कि फिर जमीन नहीं कहे कि नजस खून मेरे ऊपर क्यों आया। अच्छा जनाब ये हुआ, खा गया तो मुतवक्किल की तरफ बढ़ा तो इमाम ने कहा कि तेरा हिसाब तो होगा, अब इनसे दूर तो कोई है नहीं, अगर छुटकारा दे दे तो वो कहते हैं शायद ये माज़ल्ला ऐसे हैं, वो ऐसे नहीं है, वो तो अल्लाह भी मोहलत देता है। ठीक हुआ ये कि जब मुतवक्किल की तरफ वो बढ़ा तो क्या हुआ, मुतवक्किल घबराया या नहीं, जब घबराया तो मौला मुझे बचा। अब इमाम ने एक लफ्ज़ उसी शेर से कहा, सुबहान अल्लाह। अब दुनिया क्यों नहीं समझती इमाम के कमालात को, तसर्रुफ को। उसी खड़े हुए शेर से फरमाया, इर्जा इला शक्लिल अस्ल, अपनी असली हालत में पलट जाओ, फिर तस्वीर बन गई। बन गया या नहीं बन गया। अब मेरे इमाम से पूछा कि मौला ये बनाना क्या था, पलटाना क्या था। फरमाया बनाना खल्क है, पलटाना अम्र। बस अल्लाह ने इमामों को ये तजर्रुत, ये कमाले फाइलियत इस दुनिया में दे के इन्हें मालिक जन्नत बना के भेजा। और मालिक जन्नत मालिक वो होता है जो उस पर तसर्रुफ रखे। मिल्कियत बगैर तसर्रुफ के साबित नहीं। तो जहाँ बैठ के जन्नत की हर शय मंगवा ले उसे इमाम के, ठीक है। बस ये इनको बनाया। बस आज से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मसाइल भी हो जाए कि जो उसी तरह से अब हमने कूफा का कल मसाइल मुकम्मल किया। आज मैं आगे बढ़ते एक आवाज़ आई कि बीवियों को रोक दो, अभी बाजार सजे नहीं। माशाअल्लाह सैयद आप कबूल फरमाए। मैं हर मरतबा यही जुमला कहता हूँ और कहता रहूँगा। खुदा जाने ये ताकि इनका जुल्म आशकारा रहे कि कितनी देर तक ज़हरा की बेटियाँ इंतज़ार में रही कब बाजार सजते हैं, कब बीवियों को बुलाया जाता है। जब इन मलाइन ने अपने अपने हिसाब से बाजार सजा लिए तो ये कौन सा बाजार है? अस्कलान का बाजार। नाम सुना होगा अस्कलान। एक याकूब अस्कलानी जदीद ने भेजा था। ये जब करबला में मेरा मौला शहीद हो गए, इसके जो बच्चे पूछे थे उसको इसने लिया और लेके जब जाने लगा तो मेरे साथ से कहा मैं अपने शहर अस्कलान जा रहा हूँ। जब ज़हरा की बेटी आप शाम लाएंगे, ये शर्त है जब तक मैं बाजार न सजाऊं बीवियों को दाखिले बाजार नहीं करें। इस मलूम ने जाते ही बाजार सजाने शुरू कर दिए। अल्लाह जाने कितना सजाया होगा। जब बीवियाँ दाखिले बाजार हो गई, मेरे भाइयों, मेरे इमाम का एक मानने वाला जिसका नाम ज़रीर खुजाई लिखा है, ये ताजिर है, वहाँ ठहरा हुआ है, अस्कलान की होटल में ठहरा है। ये कहता है दोपहर को मैं अपने किसी काम के लिए बाहर निकला, इसे मालूम नहीं था ज़हरा की बेटियाँ बाजार में आ गई हैं। बाजार का काम अजर को कहता है जो ही मैं बाजार में आया
मैंने देखा लोग जरबर का लिबास पहने हुए गले मिल रहे हैं, मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। तो मैंने एक आदमी से पूछा, भाई आज ईद का दिन नहीं है, आज खुशी क्यों है? कहने लगा तू अस्कलान का रहने वाला नहीं? कहने लगा नहीं, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे खुदा के लिए बता। कहने लगा एक शख्स ने यजीद से जंग की है, वो कत्ल हो गया है, उसका साल बाजार है, इसलिए हम खुशी कर रहे हैं। जब ये कहा तो वो शायद जरीर कहता, मैंने पूछा कत्ल होने वाला मोमिन मुसलमान था या काफिर था? कहने लगे नहीं मुसलमान था। कहा बता रहने वाला कहाँ का था? कहा मैं मदीना से रसूल। मैं खुदबान ना हो जाऊँ, जब कहा ना ये मदीने के रहने वाला था, घबरा के कहता उसका नाम जानता है? कहा उसे हुसैन कहते हैं। अब मदीना और हुसैन, खुदा गवाह, ये घबरा के कहता है। एक निशानी है, बताओ इस हुसैन की माँ का क्या नाम है? कहा उसे फातिमा ज़हरा कहते। ये वो बीबिया जो मुबाहले में आई, हाँ वही। कहा मैं उतर गया, मेरा आका मौला हुसैन। कहाँ है मेरे मौला का सर? कहा बाजार में। भागता हुआ जरीर आया, आके देखा सर एक नहीं भाइयों 18 सर। दारा का बाग ऐसे नहीं गुजर गया, है 18 सर है इमाम का। ये इमाम को देखा हुआ है, जानता है। ये कहता मैं सरों को देख रहा हूँ मगर इमाम को मैं पहचान नहीं सका, इतनी रेत और खून इमाम के चेहरे पर, धोया किसी ने नहीं था। अल्लाहु अकबर। ये कहता है मैं पहचान के लिए बहुत कोशिश की मगर इमाम मुझे पहचान में नहीं आया। लेकिन जुमला कहूँ, ये कहता है सरों को देखते हुए मेरी जब निगाह 6 माह के बच्चे पे पड़ी, मैं जमीन पर बैठ के कहता हूँ आय अल्लाह, इस बच्चे से क्या कसूर हुआ, मैं ऐसे जालिम हूँ। अल्लाह ये कहता है कि सर बगैर पहचान के गुजर गए। अब मैंने क्या देखा, एक 24 साल का ज़ईफ़ कैदी आया। भाई 24 साल के ज़ईफ़ नहीं होते, गले में तौक, वजनी तौक, वजन नहीं बताते हम आपको। हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेल के मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया गया। जब वो वहाँ से चले गए, कैदी अकेला रह गया। मैंने जाके कैदी से कहा, कैदी आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाला? कैदी ने कहा तुझे नहीं मालूम होगा, मेरे गले में वजनी तौक है, झुक के देख। अब जो झुक के देखा, कहा पहचान। इमाम ने आयत पढ़ी, नमाज अहले बैत को जानता है, चिल्ला के कहता है अंत अली ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाहु अकबर। बोला कि आप अली ज़ैनुल आबिदीन। आप फरमाया जरीर तूने सही पहचाना। बोला आयन आयन अबुल फाज़िल अब्बा, आयन आयन अली अकबर। फरमाया सारे शहीदों के मैं अकेला आया हूँ। हम बोला मेरे लिए कोई हुक्म तो फरमाए। फरमाया अगर कर सकता है तो 35 चादरें ले। हाय हाय हाय, बस चादरों का नाम आना था। जनाबे ज़ैनब ने सुना, कहा सज्जाद बेटा कौन आया है? फरमाया हमारा मानने वाला ज़रीर आया है, मैंने चादरों का कह दिया है। फरमाया पहले ना कहो, पहले इन्हें मेरा सलाम। अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया ज़रीर ज़हरा की बेटी ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती है। अपने मुंह पे तमाचे मार के कहता है मौला बाजारों में सलाम ना पहुँचाए। मैं सिर्फ सलाम नहीं, वो बरहना सर खड़ी है, उनके सरों पे चादरें नहीं है, चादरें लाए गई। परवरदिगार बख्शे।